Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the PYQ of permutation and combinations. Okay, so these questions are asked by GATE in 2015. So these questions say that 5 teams have to complete in league with every team playing every other team exactly once. Before going to the next round, how many match will we have to held to complete round of the match? Okay, so ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 टीम्स है और एग्जैक्टली एक बार वो दूसरी टीम से खेल रही है, ठीक है। तो हाउ मेनी मैचेस विल बी हेल्ड टू कंप्लीट द लीड अराउंड द मैचेस। ओके, सो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 टीम्स है, 1 सेकेंड, 5 टीम्स है, 5 टीम्स एंड एग्जैक्टली वंस। ओके, एग्जैक्टली वंस। सो इसको जब हम कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5C2, 5C2, बिकॉज ये एक, क्योंकि एक टीम में मैच नहीं हो सकती, दो टीम में मैच हो सकती है। इंडिया पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका। सो दैट्स व्हाई आई रिटन लाइक दैट। ओके, सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 is 3 फैक्टोरियल। सो इफ यू सॉल्व दैम, so 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। ओके, so 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट इधर, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। So कितने, how many matches will have to need to complete this? 10 matches. Okay, this is the answer of these questions. Now come to the next question, guys. A test has 20 questions worth 100 marks total. There are two types of questions. Multiple question types are there, 3 marks for multiple choice questions and 11 marks for the essay questions. So how many multiple choice question does the exam have? So ये क्वेश्चन में कह रहा है 20 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, और ऐसे क्वेश्चन है 11 मार्क्स के। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे इसमें से? सो हम इसको मान सकते हैं, पहले लेट द नंबर ऑफ MCQ क्वेश्चन आर X and let number of essay question are Y. Okay, so from the given condition, a test has 20 question, so X plus Y equal to 20, 1, and question are given that 100 marks of the questions and 3 marks for the MCQ and 11 marks for the essay. So 3 marks for the MCQ and 11 marks for the essay, और टोटल मिला के कितने मार्क्स हमें आ रहे हैं, 100 मार्क्स। ओके, सो इफ यू सॉल्व दिस, इट्स लाइक 3x plus 11y equal to 100, and this multiply into 11, 1 second, 11, so 11x plus 11y equal to 11 to the 220। ओके, तो जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, -8x और ये -120, और x आप सॉल्व करोगे तो 15 आएगा। तो हमें x ही निकालना था, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया 11 से, जिससे हमारा y एलिमिनेट हो जाए और x आ जाए। इससे हमसे ये क्या होगा, देखिए जब हम गेट का एग्जाम देते रहेंगे, सो वी हैव टू सेव टाइम्स, then we have to save times, because of we find x is equal to 15 not y equal to this। और y कितना आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में y कितना आ जाएगा, जब आप इसे पुट करोगे तो y 15 आ जाएगा। ओके, x is equal to 15 and y is equal to 15, total number of questions 30। okay, so x is equal to 15, MCQ number of MCQ is 15, so 15 is the answer of the questions। Come to the next questions. The question says that
2 from the given digit, how many 4-digit number greater than 3000 can be formed? Okay, 4 digit. So हम लोग पहले 4 digit का एक फॉर्मेट बना लेते हैं. 3000 से ग्रेटर कब हो सकता है? जब हम लोग 3299 या 3100. तो यहाँ पे इस प्लेस पे 3 या 4 आ सकता है. 3 या 4 आ सकता है. यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 या 4. यहाँ पे हम लोग 2 3 या 4 ले सकते हैं. यहाँ पे भी हम लोग 2 3 या 4 ले सकते हैं. तो 3 और 4 ले सकते हैं. और तो 2 मल्टीप्लाई 2 3 4, सो 3. यहाँ भी 3, सिमिलरली इन दिस प्लेस ऑल्सो 3. सो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 9 9 27, 27 2 जा 54. So 54 is the answer of this question. Easy. Come to the next questions. What is the chance that a leap year selected at random will contain 53 Saturday? 53 Saturday कब होगा? So the two odd days can be Saturday, Sunday, Saturday, Sunday, Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday. ऐसा ही फॉर्म आता है ना हम लोग जब करते हैं तो एक वीक में थर्सडे एंड थर्सडे, फ्राइडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे. फिर ये लूप ऐसा ही घूमते रहेगा. तो कितने 53 सैटरडे आने के लिए बोल रहा है. सो हमारे कितने एक साल में कितने वीक होते हैं? 52. और ये कह रहा है 53 सैटरडे. तो 53 सैटरडे एक वीक में कितने आएंगे? 1. और यहाँ पे फ्राइडे एंड सैटरडे 2, 2 बार आ रहा है. और टोटल कितने आइटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. ओके. सो द प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 53 सैटरडे का? 2 डिवाइडेड बाई टोटल. टोटल इज 7. So 2 divided by 7 is the answer of this questions. Okay, come to the next question. How many 4-digit number can be formed with the 10 digit 0 to 9 if no number can start with 0 if repetition are not allowed? रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है. सो आप लोग इसे ध्यान में रखना. ओके, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जिस लाइक पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था. और 0 फर्स्ट पोजीशन पे नो नंबर कैन स्टार्ट विद 0. सो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है. 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, बट 1 to 9 तो हो सकता है. तो हम यहाँ पे 9 लिख सकते हैं. और इस प्लेस पे ये 1000 प्लेस है, ये 100 प्लेस है. 100 प्लेस पे हम 0 भी ले सकते हैं. और लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो 1000 प्लेस को छोड़ के 1000 प्लस को छोड़ के हम टोटल 0 to 9 ले सकते हैं. तो 0 to 9 में से 1000 प्लेस छोड़ के कितना आ जाएगा? 9. यहाँ पे 1000 नहीं ले सकते हैं और 100 नहीं ले सकते हैं. 100 नहीं ले सकते हैं. बट 0 to 9 में कितने नंबर ले सकते हैं? 8 नंबर ले सकते हैं. तो इसलिए मैंने 8 लिखा. यहाँ पे 1000 प्लेस वाली नंबर नहीं लेंगे, 100 प्लेस वाली नंबर नहीं लेंगे, और 10 प्लेस वाली भी नंबर नहीं लेंगे. तो 3 नंबर जब मल्टीप्लाई माइनस करोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 7 नंबर. सो ओके, 7 नंबर आएगा. तो टोटल हमारे कितने आ रहे हैं? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7. So 9 into 9 into 8 into 7, 4536. Okay, so this is the answer of this questions. Okay, in these questions given that there are 3 Indians and 3 Chinese in a group of 6 people, how many subgroup of this group can we choose so that every subgroup has at least one Indian? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पहले आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर ये सॉल्यूशन देखना. देखिए एटलीस्ट 1 इंडियन तो रहना ही चाहिए. हर कोई भी ग्रुप आप बनाओ उसमें एक इंडियन तो रहना ही चाहिए. तो हम इसे केस वाइज डिवाइड कर लेते हैं. केस वन में 1 इंडियन और रिमेनिंग चाइनीज. ये चाइनीज है. ओके, सो ये टिकता नहीं है. सो हम इसे लिख सकते हैं
3C1, एक इंडियन के लिए 3C1, और रिमेनिंग चाइनीज के लिए क्या लिख सकते हैं, 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। ओके, इजी। सो इसका क्या आ जाएगा, 3C1 3, और ये 3 प्लस 3 प्लस 1, सो कितना आ जाएगा, 3 × 7, 3 + 3 + 1 इज 7, 3 × 7 इज 21। अब केस 2 लेते हैं, जहाँ पे हमें एक इंडियन को तो रखना ही है। एटलीस्ट बोला गया है एक इंडियन को रखने के लिए, तो हम 2 इंडियन भी रख सकते हैं। 2 इंडियन एंड रिमेनिंग चाइनीज। ओके, रिमेनिंग चाइनीज। सो 2 इंडियन को रखने के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3C2, और रिमेनिंग चाइनीज 3C1, 3C2 एंड 3C3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3C2 इज 3, और वैसा ही 7, जस्ट लाइक हमने पिछले में कैलकुलेट किया, 7 इसका आएगा, तो ये भी 21 आ रहा है। ओके, केस 3। ओके, 2 इंडियन। अब हम लोग 3 इंडियन को ले ले, 3 इंडियन को, और रिमेनिंग चाइनीज। ओके, सो 3C3, 3C1, 3C2, 3C3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 3C3 इज 1, और यहाँ इसका इसका समेशन क्या होता है, इसका समेशन 7, सो 7, तो इसका कितना आ रहा है, 7। और एक और केस बनेगा, जब हमें कह रहा है जो कि इंडियन ही हमें लेना है, एक इंडियन तो रहना चाहिए, तो सब ग्रुप्स, सब ग्रुप कंटेन ओनली इंडियन। ये तो नहीं बोला गया कि चाइनीज को रखना ही रखना है, तो ओनली इंडियंस के लिए क्या बन जाएंगे हमें, 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। ओके, तो ओनली इंडियन जब ग्रुप में रहेंगे, एक सब ग्रुप में, तो उसका कितना सम आएगा, 7। तो टोटल हमारे कितने आ रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप कैन बी यूज सो दैट एवरी सब ग्रुप हैज एटलीस्ट 1 इंडियन। एक इंडियन, 2 इंडियन, 3 इंडियन, और सिर्फ पूरे ग्रुप में सिर्फ इंडियन ही इंडियन बड़े हुए हैं। हम लोग की इंडियन ही इंडियन है, चाइनीज को हम लोगों ने मार के भगा दिया। तो कितना आ जाएगा टोटल, 21 + 21 + 7 + 7। ओके, तो गाइज देखो, हम लोगों ने बाजी जीत ली है, और आंसर आ रहा है 56। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 56। अगर ये आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड फॉलो फॉर मोर PYQ।